Good evening. I hope all of you are well. We'll start this program today. The topic is entrepreneurship and career in yoga. So let's start with entrepreneurship. If I have to start a business, what are the requirements and what are the problems? The very first requirement I have is I need resources. Second is I of course need to leave my job so that I can start my entrepreneurship venture or I can start my work. Third is I need to give full-time job, right? Cost of setting up yoga business is very less. Point number two is I need not to leave my job because this is very flexible. If I want, I can work only in morning in the starting. If I want, I can work only in the evening. If I have sufficient clients, if I have sufficient business, then only I can leave all my other ventures and I come full time to this work. So these are the greatest advantages. Those who love yoga, those who are practitioners of yoga, those who actually imbibe this art, for them this is the third reason that they have passion. Passion is very, very important to take care of any business. So, if you are interested in yoga, I would suggest you to go for entrepreneurship. This is the best gift. What is the right time to start this venture? I think no time can be better than today. The reason is very simple. People need yoga more than any other time today because people have stopped going to gym. That is one particular reason. Second, if you have some kind of ailment, you have options like you can go to allopathy, you can go to naturopathy, or you can start doing yoga. Right now, and for near few months, no one can dare to go to hospital because you may go to hospital to take care of your cervical issues or any other spine cord issues or whatever, and you may get infected there. Even the government is suggesting that unless it is very, very urgent, please do not visit. So what are the options I have got? Yoga is the best option for me during the lockdown period. So can we start this business today? And lots of things can happen online also, because like in education also, if you see, most of the businesses which are brick and mortar, they are giving up to a certain period of time, they are giving online education. As soon as this shutdown is over, the classes will resume in the brick and mortar kind of setup. The same thing can happen in yoga also. Now the point here is, till what extent I can go in yoga, how big I can make my business in yoga. I was reading somewhere that yoga is the next unicorn. You understand the meaning of unicorn? The meaning of unicorn is when you do a startup and the valuation of that startup is more than $1 billion, then we call it unicorn. So the Flipkart, you see the Byju's, you see the Poyo, all these are unicorns. I heard that next unicorn is going to be yoga. So yoga business is going to be $1 billion. Now the point is, who will do this? And whoever wants to do it, what are the options and what are the ways or what are the styles they need to go for this so that they can make it as big as a unicorn. सबसे पहले हम यहाँ पर ये समझते हैं क्या डिफरेंस होता है एक स्टार्टअप में और एक एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर में और एक बिजनेस में, क्योंकि हम ये तीन टर्म हैं जो हम बहुत ही बार बार सुनते रहते हैं और हमें कंफ्यूजन होता है क्या ये तीनों सेम हैं, क्या ये तीनों अलग हैं। तो हम बिजनेस की जहां पर बात करते हैं, एक बिजनेस जो है वो एक ब्रॉड टर्म है। बिजनेस के अंदर स्टार्टअप भी आ सकता है, बिजनेस के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप भी आ सकता है। अब ये बिजनेस किस तरह का हो सकता है? ये बिजनेस ऐसा भी हो सकता है जो आपका कई पीढ़ियों का है,
ये बिजनेस ऐसा भी हो सकता है जो आपने फर्स्ट जनरेशन में अभी शुरू किया है। यदि आपने ये फर्स्ट जनरेशन में शुरू किया है तो ये आपका एंटरप्रेन्योरियल वेंचर है। अब हम आते हैं डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप। एंटरप्रेन्योरशिप जनरली क्या होती है? एंटरप्रेन्योरशिप वो होती है जहां पर व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति बिजनेस करता है। स्टार्टअप वो होता है जहां पर आपके जो सपने हैं वो आपसे बड़े हैं, यानी जो बिजनेस है वो फाउंडर से ज्यादा बड़ा है। फाउंडर बिजनेस के कारण जाना जाएगा, बिजनेस फाउंडर के कारण नहीं जाना जाएगा। तो सबसे पहले मेरा एक सजेशन है आपसे, आप बिजनेस के बारे में ना सोचें, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोचें, और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में ना सोचें, आप स्टार्टअप के बारे में सोचें, और आपका ध्येय होना चाहिए यूनिकॉर्न। ऐसा कोई रीजन नहीं है कि अगर आप अपना काम पूरी ईमानदारी से, पूरे पैशन के साथ करें और आप भविष्य में इसको बहुत बड़ा ना बना सकें। जैसे कि हर बिजनेस में कुछ बिजनेस के उसूल होते हैं, मुझे लगता है लगभग योगा के बिजनेस में ही वही सारे उसूल लगेंगे, वही सारे रूल लगेंगे। नंबर 1, योगा जो है वो सर्विस इंडस्ट्री का पार्ट है, और सर्विस इंडस्ट्री सबसे ज्यादा बूम पर है। उसमें भी अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा बूम पर क्या है? विद इन सर्विसेज इंडस्ट्री सबसे ज्यादा बूम पर है, सबसे ज्यादा उठाव पर है फिटनेस एंड वेलनेस। चूंकि योगा फिटनेस एंड वेलनेस का पार्ट है, और अभी जो माहौल विश्व में चल रहा है उस माहौल में चलते हुए यदि हम देखें कि मेरे पास फिटनेस और वेलनेस के कितने ऑप्शंस थे, उनमें से लगभग सारे ऑप्शंस खत्म हो चुके हैं। और जब मेरे बाकी सारे ऑप्शंस खत्म हो चुके हैं तो योगा का जो ऑप्शन है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि योगा एक ऐसा क्रिया है जिसमें हम सोशल डिस्टेंसिंग का वैसे भी ध्यान रखते हैं। मुझे याद है जब मोदी जी ने वो प्रोग्राम किया था योग दिवस के दिन, तो जितने लोग बैठे थे उनके बीच में उतना ही डिस्टेंस था जितना आज मोदी जी कह रहे हैं कि लोगों के बीच में होना चाहिए। तो इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉब्लम नहीं है, टच करने का प्रॉब्लम नहीं है। योगा में आप किसी इक्विपमेंट को नहीं छूते हैं, जिस तरह से आप जिम में जाते हैं, आप जिम के एक ही इक्विपमेंट को 1000 लोग छूते हैं, इसीलिए उसमें संक्रमण का खतरा होता है। योगा में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो खास तौर से ये आगे आने वाला जो समय है वो किसी भी वेंचर को जो स्टार्ट करने वाला एक जेस्टेशन पीरियड होता है उसके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। तो मेरा बहुत ही ज्यादा सजेशन आपसे ये है कि बाय द टाइम आवर इकोनॉमी विल रिवाइव, जब तक हम इन सारी चीजों से उबरते हैं तब तक अगर आपने योगा में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश कर लिया तो इससे अच्छा समय आपको कभी नहीं मिलेगा। जो भी स्टार्टअप हम करते हैं मुझे लगता है सबसे कम लागत जो आएगी वो योगा में आएगी। जो भी स्टार्टअप हम करते हैं उसमें सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी अगर टाइम की है तो योगा में, सबसे ज्यादा मार्केट अगर हम देखें तो योगा में है। लेकिन परेशानी क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि जो भी अधिकतर लोग योगा में बिजनेस करना चाहते हैं और जो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, पहले हम उनके कारण देखते हैं कि क्यों सक्सेसफुल नहीं होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि नंबर 1 कारण, जो भी व्यक्ति सक्सेसफुल नहीं होता वो अपना पूरा फोकस सिर्फ योगा पर रखता है, बिजनेस पर फोकस नहीं रखता। तो प्लीज अंडरस्टैंड, यदि आप बिजनेस पर फोकस नहीं रखेंगे तो बिजनेस कैसे चलेगा? इसका मतलब यह है कि आपके क्लाइंट को इस बात से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आप स्वयं योगा में कैसे हैं। आपके क्लाइंट को इस बात से ज्यादा फर्क पड़ता है कि आप उस क्लाइंट को योगा करवाने के लिए कितने उपयुक्त व्यक्ति हैं। हो सकता है आप एक दूसरे व्यक्ति से कम जानते हो, लेकिन यू आर मोर अवेलेबल, यू नो, जो एक डिस्टेंस है, जो डर जो एक लगता है। एक मैंने बहुत अच्छे योगी को देखा, आई एम कंप्लीटली एडमायरिंग हिम, लेकिन प्रॉब्लम ये है मुझे उनसे कुछ भी पूछने में डर लगता है। दूसरा, उन योगी के एक शिष्य हैं जो बिल्कुल फ्रेंडली हैं, मेरी ही उम्र के हैं, मुझे बड़ा उनके साथ हंसी मजाक भी मैं कर सकता हूं, उनके साथ मैं कंफर्टेबल हूं। आपको क्या लगता है, गिवन एन ऑप्शन, मैं इन दोनों में से किससे 0 लेवल से योगा सीखना चाहूंगा? मेरा तो आंसर है मैं हमेशा दूसरे व्यक्ति के पास जाऊंगा। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम अपने आप को योगा ट्रेनर की बात कर रहे हैं या हम अपने आप को एक योगा का बहुत अच्छा स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, ये दोनों सेम नहीं है।
जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो सबसे अच्छा छात्र था वो अच्छा योगा का टीचर बनेगा। जो भी आप लोग जानते हैं जिन्होंने योगा की ट्रेनिंग क्लासेस अटेंड की हैं, मास्टर ट्रेनर्स की क्लासेस अटेंड की हैं, आपके डेफिनेटली बैचमेट्स होंगे, और अगर आपने बहुत समय पहले किया है तो ये आप मेरी बात को जस्टिफाई कर सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि जो क्लासरूम में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस योगा में करता था वो सबसे सक्सेसफुल योगा का ट्रेनर बन पाया हो, क्योंकि योगा के ट्रेनर बनने के लिए आपके अंदर कुछ अलग गुण होने चाहिए। कौन कौन से गुण होने चाहिए? सबसे पहला जो मैंने आपको बताया, यू शुड बी एक्सेसिबल। यानी यदि 5 आपके योगा के ट्रेनर हैं, इन 5 में से ऐसा कौन सा ट्रेनर है जिससे बाकी सारे लोग बहुत आसानी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, समस्या डिस्कस कर सकते हैं, परेशानी अपनी बता सकते हैं, और बाकी 4 ऐसे कौन से हैं जिनसे लोगों को डर लगता है, वो छुपाना चाहेंगे, वो बोलेंगे एवरीथिंग इज ओके, दे विल से ओके ओके, कुछ भी ओके नहीं है बट दे विल से ओके। तो इसका मतलब है आप बहुत अच्छे योगी हो सकते हैं लेकिन आप बहुत अच्छे ट्रेनर नहीं हो सकते। आपके मन में एम्पैथी होना चाहिए। कुछ बहुत ही सिमिलर से वर्ड्स हैं ये, सिंपैथी, एम्पैथी। क्या अंतर होता है? सिंपैथी है सहानुभूति, और एम्पैथी होता है अपने आप को किसी और के स्थान पर रखकर देखना, गेटिंग इनटू समवन शूज। तो ये जो ट्रेनर है इसको सिंपैथी नहीं चाहिए, इसको एम्पैथी चाहिए। जब तक वो एम्पैथी नहीं होगी तब तक वो जो स्टूडेंट आपका है वो आपसे नहीं जुड़ेगा। कुछ और ट्रेनिंग इंडस्ट्री के बहुत छोटे छोटे से उसूल होते हैं, जैसे उनमें से प्रथम है, आपको अपने सारे क्लाइंट्स का नाम पता होना चाहिए। सिर्फ पता नहीं होना चाहिए, जब भी मौका मिले उनको संबोधित करते समय उनसे भाई साहब, उनसे शिष्य, उनसे जो भी आप शब्द यूज करते हैं उनके स्थान पर यदि आप उनका नाम लेकर बात करेंगे तो मुझे पक्का पता है वो उनका आपसे जुड़ाव ज्यादा होगा, वो आपको और बहुत सारे स्टूडेंट्स लाकर देंगे, वो आपके बिजनेस को या आपकी ट्रेनिंग को आगे बढ़ाएंगे। आपकी जो पर्सनालिटी है वो चार्मिंग होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी पर्सनालिटी बहुत ज्यादा रिजर्व है, आप बहुत अच्छे योगी हो सकते हैं, आपको कॉन्सेंट्रेट करने में शायद आसानी भी होगी, लेकिन जब भी हम ट्रेनिंग या बिजनेस की बात करेंगे तो फिर इसमें थोड़ी सी आपको परेशानी आएगी। तो इसीलिए थोड़ा सा आपको इस बारे में भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात आती है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स या कम्युनिकेशन एबिलिटीज या इवन लैंग्वेजेस। आप किस स्थान पर रहते हैं और कौन सी आपकी लैंग्वेज है। आप साउथ इंडिया में रहते हैं, आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, आप ट्रेनर हैं एक तमिलनाडु में, लेकिन आपको तमिल नहीं आती, डेफिनेटली लोग आपसे उतने कंफर्टेबल नहीं होंगे सीखने में जितने अगर आपको तमिल आती होती तो आपको होंगे। इनफैक्ट जो नए बडिंग ट्रेनर्स हैं, खासतौर से जो अपना करियर आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छे से मैं आपको मोटिवेट करने की कोशिश करूंगा, यदि आप कोई फॉरेन लैंग्वेज भी सीख लें, यदि आप फॉरेन लैंग्वेज सीख लें, नंबर 1, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड योगा टीचर्स की बहुत ज़्यादा कमी है। अभी यूएस में एक सर्वे हुआ था, उसमें टॉप 100 जो प्रोग्रेसिव जॉब्स हैं उनमें से योगा ट्रेनिंग टीचर का नंबर 10th है, 10वें नंबर पर है। एवरेज सैलरी $62,000 है, जो लगभग अगर हम निकालें तो 43 लाख 42 या 43 लैक्स पर एनम बैठती है। इस तरह के जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको दुनिया भर में हैं, लेकिन इन जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। आपको नंबर 1 कम से कम इंग्लिश तो आपकी बहुत अच्छी होनी ही चाहिए। अगर आपको फ्रेंच आती है, आपको जर्मन आती है, तो इट कुड बी, चाइनीज आती है तो इट कुड बी a great advantage. Though I am taking this China name in the wrong times, but I am sure things will not be the same and things will improve. So, if अगर आपको विदेशी लैंग्वेज आती है तो आपके विदेश में जाने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। हाँ, आप ये ध्यान रखें, जब आप विदेश जाएंगे तो आपकी वीज़ा प्रोसेसिंग बिल्कुल सही हो, आपने अपना एम्प्लॉय वेरिफिकेशन पासपोर्ट ऑफिस से कराया हुआ हो, हर 3 साल में उसको आपको रेगुलराइज करना होता है। तो आप इन लीगल चीज़ों का ध्यान रखें ताकि आपके करियर के बीच में ये छोटी मोटी चीज़ें बाधा न डालें। हालांकि मेरा आपको आज कहने का उद्देश्य नौकरी के लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज मैं जो आपसे बात करने आया हूं, मेरा टॉपिक भी है एंटरप्रेन्योरशिप इन योगा। तो मेरा इच्छा तो ये है
कि आप बाहर जाएं, कुछ सीखें और वहीं बिजनेस सेटअप करें। आप इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप करें या आप बाहर करें, लेकिन एम ये है, यदि आप एंटरप्रेन्योरशिप में जाएंगे, सर्विस इंडस्ट्री है, आपको बहुत कुछ मिलेगा। क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर को जो सबसे अच्छा सुकून जो मिलता है वो अपने वक्त का खुद मास्टर होता है। वो अपने वक्त का खुद मास्टर होता है। मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। I have worked with Morgan Stanley, I have worked with IT companies, I have worked with iGate। मैंने जब एंटरप्रेन्योरशिप में आया तो मेरा मेन एक मुद्दा ये था कि यदि मैं एक दिन 20 घंटे काम करता हूं क्योंकि ऑफिस में काम ज्यादा है, तो क्या मुझे अगले दिन 8 घंटे की जगह, जब कोई काम नहीं है सिर्फ मुझे बैठना है ऑफिस में, क्या मैं 8 घंटे की जगह 7 घंटे बैठ सकता हूं? आंसर वाज नो। आपको उस दिन का तो टाइम पूरा करना ही करना है। So this was the flexibility which I feel I am 100% satisfied in this entrepreneurship। तो अगर आप भी योगा में entrepreneurship में जाते हैं तो आप अपने वक्त के मालिक होंगे। कब कितना ज्यादा काम करना है आप डिसाइड करेंगे। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है, हाँ, लेकिन आपको थोड़ा पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। क्योंकि जब तक आप पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये मार्केटिंग का काम है। आपकी बात बिल्कुल सही है, आप एक गुरु हैं, आप एक टीचर हैं, आपको शिष्यों को पढ़ाना है, लेकिन ये जो आपका प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट कहीं ना कहीं सेल होता है। और सिर्फ प्रोडक्ट सेल नहीं होता है। देयर आर 2 ways ऑफ मार्केटिंग योर प्रोडक्ट, ईदर एडवर्टाइजिंग और इट इज द चेन सिस्टम। आपके संपर्क में 20 बच्चे आए हैं, उन 20 बच्चों के संपर्क में हर एक के संपर्क में 20-20 बच्चे हैं, और इस तरह से आपकी जो आपका जो रेपुटेशन है वो धीरे धीरे सभी लोगों में फैलता है। तो जब हम इस रेपुटेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर मेन फायदा हमें क्या होता है कि हम अपनी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट भी बचा सकते हैं। अगर आप प्लीजिंग पर्सनालिटी हैं, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपने फोकस किया हुआ है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, आप में एम्पैथी अच्छी है, आप सामने वाले को, अगर खासतौर से एलिमेंट है, किसी को कोई रोग है और आप उसको योगा कराते हैं, तो आप उसका कॉन्फिडेंस जीतते हैं कितनी आसानी से। मैं सीरियसली, मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया का हर व्यक्ति आपका प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट है। कमी उन लोगों की नहीं है जो योगा नहीं करना चाहते, कमी उन लोगों की है जो लोगों से योगा करवा नहीं पा रहे हैं। ऐसी चार्मिंग पर्सनालिटीज की जरूरत है, ऐसी मोटिवेटिंग पर्सनालिटीज की जरूरत है जो सामने वाले के मन में योगा की अलग जगा सकें। और जो ये व्यक्ति ऐसा करेगा, यदि वो लोगों के भले के लिए ऐसा करेगा, उसका भला अपने आप होगा, उसका बिजनेस हमेशा के लिए चमकेगा। तो आपको कुछ अलग से काम नहीं करना है। अपने योगा के बिजनेस को सेटअप करने के लिए कोई अलग से काम आपको नहीं करना है। सिर्फ आपके अंदर ये चेतना होनी चाहिए कि आप कितने ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों को योग में कन्वर्ट कर सकते हैं जिन लोगों ने पहले कभी योग के बारे में नहीं सोचा। एंड आई एम श्योर उनको भी बहुत सारे लोगों ने समझाया होगा, लेकिन एक ही बात 100 लोग समझाते हैं, 99 लोगों से बात समझ नहीं आती। एक बंदा आपको अपनी लाइफ में ऐसा मिलता है जो आपको वही बात समझाता है जो पहले भी 99 लोग आपको समझा के जा चुके हैं। तो इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो 100th पर्सन है, इसका ये जो एक्सपीरियंस है, और मानिए जिस व्यक्ति को योगा में इंटरेस्ट नहीं है, आपने उसको पहली बार योगा से जोड़ा, अब वो लाइफ में जो कुछ भी करेगा, जिन भी आयामों पर वो पहुंचेगा, वो आपको भी क्रेडिट देगा। तो आपका क्रेडिट तो अपने आप ही आएगा। लेकिन यदि हम जो एक बात मैं लगभग सारे बिजनेसेस के लिए कहता हूं, तो मैं इसके लिए भी यही कहूंगा, इसमें कोई खास अलग से बात नहीं है। दुनिया में आप पैसा किसी भी चीज में नहीं बना सकते यदि आप पैसा कमाने के लिए वो बिजनेस करते हैं। जिस दिन आप बिजनेस करने के लिए बिजनेस करेंगे और आपका मिनिमम ये होगा कि यार मेरा सारा खर्चा अच्छे से निकल जाए, मेरे एम्प्लॉइज को वक्त पर पैसा मिल जाए, मेरे रेंटल्स चले जाएं, मेरे खर्चे सारे पूरे अच्छे तरीके से हो जाएं, सिर्फ ये ध्येय रखकर और ज्यादा से ज्यादा मैं अपने बिजनेस को बढ़ा सकूं। प्लीज अंडरस्टैंड, पैसा कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। उल्टी बात है ये। यदि आप पूरा फोकस पैसे पर रखकर काम करोगे, पैसा नहीं आएगा। लेकिन अगर आप अपना पूरा फोकस सक्सेस पर रखकर करोगे, पैसा आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि पैसा जो है वो सक्सेस का बाय प्रोडक्ट है।
पैसा प्रोडक्ट नहीं है। तो जब भी आपको किसी भी क्षेत्र में सक्सेस मिलेगी तो मेरी गारंटी है कि पैसा तो साथ में आएगा ही। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, हमें यह देखना है कि जिस भी लेवल पर हम कोई अपना स्टूडियो खोलना चाहते हैं या हम 1-to-1 सर्विस देना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हम लोगों को घर पहुंचकर सेवा दें, जो लोग बहुत ही ज्यादा इल हैं, जिन रोगों का उपचार योगा के माध्यम से किया जा सकता है, हम ऐसा भी बिजनेस कर सकते हैं जहां पर आपके साथ पूरी टीम होगी और वो टीम वहां जाकर उन लोगों का उपचार करेगी। दैट इज ऑफ कोर्स वन मॉडल इन योगा। सेकंड मॉडल इज यू कैन गो फॉर योगा स्टूडियो। आप योगा स्टूडियो आप खोल सकते हैं, जरूरी नहीं है स्टूडियो का मतलब कोई कॉमर्शियल मॉल में आपका बड़ा शानदार सा ऑफिस हो, आप अपनी सोसाइटी के पार्क से भी शुरू कर सकते हैं। देयर आर मेनी गुड पीपल हु हैव डन वंडर्स एंड दे स्टार्टेड दिस वे। तीसरा ऑप्शन हो सकता है कि आप योगा ट्रेनिंग सेंटर या आप टीचर्स ट्रेनिंग में जा सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस योगा के हैं और यदि हम देखें तो योगा में तो बड़े बड़े काम हुए हैं। पतंजलि ने इतना बड़ा काम जो किया है उसका पूरा का पूरा श्रेय योगा को जाता है। तो स्काई इज द लिमिट इन योगा। किसी ने लिखा भी है, रामवीर सिंह जी कहते हैं या यह कला सिर्फ बाबा रामदेव में ही है। नहीं रामवीर सिंह जी, ऐसा नहीं है, ये कला बहुत लोगों में हो सकती है और हो सकता है आगे कोई ऐसा बंदा आए जो उनको भी पीछे छोड़ दे, इंस्पिरेशन उनसे लेकर उनको भी पीछे छोड़ सकता है। तो रादर देन हम किसी की सफलता से ईर्ष्या करें या रादर देन हम किसी की सफलता से ये मान के चलें कि नहीं शायद हम में वो चीज नहीं है, हाँ ये पक्का है हम उसको पूरी तरह से कॉपी नहीं कर सकते क्योंकि कोई ना कोई उनकी अपनी स्टाइल है। आप स्टाइल कॉपी मत करिए, लेकिन आप इंस्पिरेशन बिल्कुल ले सकते हैं, पॉजिटिव ले सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप बिल्कुल ऐसी इंस्पिरेशन उनसे लें और उनसे भी बड़ा बन के दिखाएं। कुछ भी ऐसा नहीं है जो किसी और ने इस विश्व में किया है और आप नहीं कर सकते हैं। सब कुछ आपके पास है और ऐसी अपॉर्चुनिटी, ये जो मैं आपको लॉकडाउन की अपॉर्चुनिटी बता रहा हूं, ये अपॉर्चुनिटी तो उनको भी अपने समय में नहीं मिली। तो यदि आप आज की डेट में अपना योगा का बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिली हुई है, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई एम श्योर कि अब तक कभी भी किसी योगा बिजनेस वाले को नहीं मिली। एकदम से रेडी मार्केट है। आपको पता है कि आज से कुछ दिनों बाद जब लोग अपने ऑफिसेज जाना शुरू करेंगे, उन सबका वेट बढ़ चुका होगा, उन सबके घुटने जाम हो चुके होंगे, वो सब बहुत दिनों से घर में बैठे हुए होंगे। उसके बाद भी हो सकता है कुछ समय तक गवर्नमेंट बाकी सारी चीज़ों को जैसे जिम वगैरह को अलाउ ना करे तो वो लोग भी योगा की तरफ मुड़ेंगे। और उससे भी बड़ी बात है, जैसे मैं अभी आप लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ, मुझे लगता है इसमें भी एक अपॉर्चुनिटी इस कोविड-19 की है, क्योंकि शायद अगर आप लोग अभी फ्री हो नहीं होते तो शायद सुनने वालों की संख्या आज कम होती। तो इसी तरह से यदि आप भी कोई ऑनलाइन प्रमोशन करेंगे, आप भी अगर अपनी बात लोगों तक सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाएंगे तो अभी चांसेस ज्यादा हैं कि आप ज्यादा सुने जाएंगे रादर देन बाद में जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। और यदि आपने अभी कोई मुकाम हासिल कर लिया, अगर यदि आपने अभी कोई बढ़त हासिल कर ली तो डेफिनेटली सब कुछ नॉर्मल होने के बाद भी वो बढ़त आपके पास रहेगी। तो मुझे सीरियसली लगता है कि बिल्कुल सही समय है, बिल्कुल सही माहौल है। आप बिल्कुल ज्यादा ना सोचें, पूरी तरह से आप अपने आप को इसमें निकाल दें। लोगों को ऐसा लगता है कि आई एम नॉट टैलेंटेड, ये मैं आपको सबका बता रहा हूं। हर व्यक्ति को जब भी ये कहा जाता है कि कोई हाई रिस्क का काम करना है तो सबसे पहले उसके अंदर क्या एक डर आता है कि मुझ में टैलेंट नहीं है और जो टैलेंटेड होगा वो सफल होगा। तो ये टैलेंट होता क्या है और ये टैलेंट आता कहां से है? टैलेंट कोई जन्मजात चीज नहीं है। कोई भी जन्म से पैदा होने के बाद अचानक से टैलेंटेड नहीं हो जाता। तो जिसमें टैलेंट है, जिसको भी हम कहते हैं टैलेंटेड है, उसने क्या किया? टैलेंटेड व्यक्ति ने कुछ अलग नहीं किया आपसे। टैलेंटेड व्यक्ति ने सबसे पहले अपनी यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ को पहचाना। मुझ में ऐसा क्या खास है, मैं बाकी लोगों से कैसे अलग हूं, सबसे पहले उसने अपने आप को पहचाना। नंबर 2, जब उसको समझ में आ गया कि ये मेरी स्ट्रेंथ है तो उसने अपनी सारी शक्तियों को बाकी सब जगह से हटाकर सिर्फ इस यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ में लगा दिया और उसके बाद उसने इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की। तो ये जो चीज थी सेल्फ रिकॉग्निशन, उसको अपना
खुद का ज्ञान कि मैं कैसा हूं, मेरी मुझ में क्या अच्छा है, और उसके बाद का हार्डवर्क, ये दोनों मिलकर ही टैलेंट बनता है। तो आप टैलेंट के लिए ऐसा मत मान के चलिए कि वन फाइन डे आप सुबह सोकर उठेंगे और आप में टैलेंट आ जाएगा। जी नहीं, इस टैलेंट को पैदा करने के लिए, नर्चर करने के लिए आपको सबसे पहले पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए, उसके बाद सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन चाहिए, और जब आपके अंदर ये दोनों आ जाएं उसके बाद आपको हार्डवर्क चाहिए। यदि आप ये तीनों हार्डवर्क योगा में करते हैं तो स्काई इज द लिमिट। आप ट्रेनिंग में भी जा सकते हैं, जॉब में जा सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, कहीं भी कोई भी परेशानी नहीं है। फिर भी यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं जो भी कह रहा हूं वो सिर्फ बातें हैं, आपने कुछ करके देखा है, तो प्लीज शेयर इट हियर। आई एम वेरी श्योर मैं जो आपको आंसर दूंगा उससे बाकी लोगों को भी बेनिफिट होगा। तो कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी आपके दिमाग में आ रही हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं आप कह रहे हो लेकिन शायद ऐसा नहीं हो पाएगा, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, तो सीरियसली आई वुड लाइक टू हेल्प यू, आई वुड लाइक टू डिस्कस योर प्रॉब्लम्स इन डिटेल। आप कमेंट्स में मेंशन करिए, विल डिस्कस इट हियर। क्योंकि अगर आपका आंसर नहीं आ रहा है इसका मतलब मुझे ये अजम्पशन करना पड़ेगा कि हाँ जी शायद आप मेरी बात से सहमत हैं। तो कोई भी चीज अगर आपको आगे फर्दर डिस्कस करनी है तो आप इसमें लिख सकते हैं। मैं उल्टा कहता हूं, क्यों ना हम ऐसा करें कि आप मुझे बताइए कि क्यों आप योगा में सफल बिजनेसमैन नहीं बन सकते, क्यों आप योगा के बहुत सफल ट्रेनर नहीं बन सकते, ऐसी कौन सी कमी आपके व्यक्तित्व में है, आपकी टैलेंट में है, आपकी आदतों में है। जो भी आपको लगता है आप यहां टाइप करिए, मैं आपको बताऊंगा कैसे इंप्रूव करना है। सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। इंडिविजुअल बात कर रहा हूं मैं, कलेक्टिव की बात नहीं कर रहा हूं। जिस भी व्यक्ति को ऐसा लगता है, जिस भी आपकी ईक्यू के कारण कोई भी ऐसी चीज आपके अंदर है जो आपको सफल बनने से रोक रही है, तो आप प्लीज मुझे बताइए, मैं आपको डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन बता के जाऊंगा। बहुत सारे बड़ी एंटरप्रेन्योर्स को मैंने हेल्प की है, तो ये सारा एक्सपीरियंस आई एम श्योर आई कैन शॉवर ऑन यू। Pradyumna Singh Tanwar, kindly connect YCB. Okay, I think this is some one-to-one message. और कोई इसमें मुझे, if you can mention the credible yoga certifications available, especially if it is online. देखिए प्रद्युम्न सिंह, आपको ये बताना पड़ेगा सबसे पहले आप चाहते क्या हैं। यदि आप ये चाहते हैं कि आपको गवर्नमेंट की जॉब करनी है तो आपका सर्टिफिकेशन हेल्प कर सकता है। मोस्टली जो मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है, सर्टिफिकेशंस जो हैं वो बेसिक नीड तो होते हैं। अगर आप किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हैं, कोई सर्टिफिकेशन आपको हेल्प नहीं करेगा। योगा का बेसिक नॉलेज, आपकी बेसिक पर्सनालिटी, आपकी बेसिक मार्केटिंग स्किल्स ही आपको ऊंचाई तक ले जाएंगी। आपने कभी बाबा रामदेव से पूछा है कि उनके पास कौन सा सर्टिफिकेशन है? कौन से सफल योगी से आपने पूछा है कि क्या सर्टिफिकेशन है? तो आप सर्टिफिकेशन के चक्कर में ना पड़ें। मेरा आपको सजेशन है कि आप नॉलेज के चक्कर में पड़ें। जितनी अच्छी आपकी नॉलेज होगी उतना आप लाइफ में ऊपर जाएंगे। यस, सर्टिफिकेशंस आर नेसेसरी टू टेक केयर ऑफ योर entry level criteria. So I think any program which is certified with Ayush will work for that. उसमें ऐसा नहीं है कि ये नंबर 1 कॉलेज से अगर आप निकले हैं तो आप बेस्ट जगह पर पहुंचेंगे, नंबर 3 से अगर आप पहुंचे हैं तो शायद आपको रोक दिया जाएगा, नहीं जी आप नंबर 1 से क्यों नहीं है। सो नथिंग लाइक दैट, इट इज जस्ट टू अप्लाई। उसके बाद तो आपका इंटरव्यू होगा, आप योगा करके भी दिखाएंगे, वही सारी चीजें आपको काम आएंगी। सो डू नॉट गो फॉर अ पीस ऑफ पेपर, माई सजेशन इज गो फॉर द नॉलेज। होमनाथ सिंह कोडल, आपने पूछा है योगा टीचर के लिए, आप प्लीज थोड़ा ज्यादा टाइप करेंगे तो मुझे पता चलेगा, हो सकता है आपने पहले कुछ टाइप किया हो, लेट मी चेक। योगा टीचर के लिए आप क्या पूछना चाहते हैं? नहीं, मुझे आपका पहले कोई मैसेज नहीं दिख रहा है। नहीं, अगर आप पूरा क्वेश्चन पूछेंगे तो शायद मैं आपको आंसर कर पाऊंगा कि योगा टीचर के लिए आप क्या करना चाहते हैं। YCB इज फ्रॉम आयुष मिनिस्ट्री। हाँ जी, देखिए कोई भी गवर्नमेंट का सर्टिफिकेशन किसी भी जगह से हो, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, वो मान्य हो, नथिंग शुड बी इलीगल, नथिंग शुड बी
showing something else and doing something else, that is the only thing which is sufficient. Otherwise it is not that there is number one kind of certificate, number two kind of certificate or number three kind of certificate. It should be legal and it should be certified. लेकिन आपकी पूरी लाइफ में, आपकी एंटरप्रेन्योरशिप में, सारी चीजों में आपका काम ही इंपॉर्टेंट है. आपके काम से जो आपका नाम होगा वो हमेशा के लिए है. लेकिन अगर आपने कोई अपने नाम के कारण काम किया, वो ज्यादा दिन नहीं टिकता. तो आप अगर कॉलेज के नाम पर, यूनिवर्सिटी के नाम पर, कोर्सेज के नाम पर जॉब मिलते हैं, मेरा ये कहना नहीं है कि नहीं मिलते, लेकिन उसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाते. पहला जॉब तो आपको मिल सकता है, दूसरा जॉब आपको तभी मिलेगा, या पहले जॉब में प्रमोशन आपको तभी मिलेगा जब आपकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी है. प्लीज गाइड हाउ टू डू मार्केटिंग ऑफ द योग स्टार्टअप एंड रेज द फाइनेंस टू फॉर द सेम. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अनु जी आपने पूछा है. मुझे पूरा नहीं दिख रहा है, लेट मी चेक. यस, दिख गया. गुड इवनिंग सर, प्लीज गाइड हाउ टू डू मार्केटिंग फॉर योगा स्टार्टअप. देखिए, योगा स्टार्टअप की मार्केटिंग कोई बाकी चीजों से अलग नहीं है. दो तरह की मार्केटिंग है. वन इज पुश मार्केटिंग जिसको हम कहते हैं, एंड सेकंड इज वॉइस ऑफ माउथ. पुश मार्केटिंग में आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आप अपना योगा का पेज बनाएं, आप फेसबुक पर जाएं, आप इंस्टाग्राम पर जाएं, वहां जाके आप अपनी चीजों को स्प्रेड करें. आप क्या क्या कराते हैं, कैसे कराते हैं, क्यों कराते हैं. आप कुछ फ्री सेशंस रखें, आप कुछ ऐसे सेमिनार्स करें जहां पर आपसे लोग जुड़ें. तो दिस इज वन पुश मार्केटिंग. सेकंड ये है कि अगर आप धीरे धीरे स्टार्ट करना चाहते हैं, आप शुरू में अपना प्रोफेशन पूरी तरह से नहीं छोड़ गए हैं, आप कहीं और भी काम करते हैं, तो आप धीरे धीरे अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो कोई बहुत ज्यादा मार्केटिंग एक्टिविटीज की इसमें जरूरत नहीं है. क्योंकि अगर आपका काम अच्छा है तो आपको शुरू में 2 लोग मिलेंगे, 2 से 10 लोग होंगे, 10 से 100 लोग होंगे, 100 से 1000 लोग होंगे. तो दोनों मॉडल में से जिस भी मॉडल पर आप चाहें उस मॉडल पर आप काम करना शुरू कर सकते हैं. बस मेरा सजेशन ये, डोंट वेट, डू नॉट वेट फॉर द राइट मोमेंट. टुडे इज द राइट मोमेंट. हर तरह की मार्केटिंग की फैसिलिटीज हैं. मेरा सजेशन है, जब तक आपके पास कुछ सब्सटेंशियल ना हो जाए, अननेसेसरी जरूरत से ज्यादा खर्चा ना करें. उसमें मेहनत ज्यादा करें, खर्चा कम करें. हाउ टू रेज द फाइनेंसेस फॉर द सेम. अनु जी, मुझे नहीं पता आप किस तरह के फाइनेंसेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि अनलेस यू आर डूइंग समथिंग, यू आर ओपनिंग सम कॉलेज और समथिंग लाइक दैट, वेयर डू यू नीड फाइनेंसेस. इफ यू कैन प्लीज एलेबोरेट कि कौन से ऐसे खर्चे आपको योगा के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हैं जिसके लिए आपको बाहर से फंडिंग या फाइनेंसिंग चाहिए. बहुत ही कम लागत में ये योगा का बिजनेस शुरू हो सकता है. ऑलमोस्ट नील में भी आप शुरू कर सकते हैं. आप लोगों को लेट देम बी अवेयर. आप हाथ से लिख के बिल्स बांट सकते हैं. आप पर्चे छपवा के किसी सोसाइटी या किसी मोहल्ले में बंटवा सकते हैं. आप पार्क में क्लासेस शुरू कर सकते हैं. उसके बाद देखिए आपका काम ही काम आएगा. सिर्फ सर्टिफिकेशन की वजह से या सिर्फ आपने कह दिया कि आप योगा सिखाएंगे, इसकी वजह से आपके पास 1000 लोग आ जाएं, 2000 लोग आ जाएं, कभी नहीं होगा. आपके पास 2 लोग आएंगे, 4 लोग आएंगे. वो फिर कैसा वर्ड ऑफ माउथ देते हैं, या 2 दिन बाद वो भी आना बंद हो जाते हैं, वो तो आपके काम से डिपेंड करेगा, आपके व्यवहार से डिपेंड करेगा, आपकी प्लीजिंग पर्सनालिटी से करेगा, आपके मोटिवेशन से करेगा. सर, टू सेट अप अ सेंटर, तो सेंटर सेट करने के लिए क्यों आपको फंड चाहिए? आप सेंटर सेटअप करने के लिए, मैंने कहा ना, आप एक कम्युनिटी पार्क से भी शुरू कर सकते हैं. जैसे जैसे आपके पास लोग आते जाएं, आप चाहें तो उस पैसे को जो आपके पास आएगा आप उसको री इन्वेस्ट कर सकते हैं. आई डोंट थिंक कि आपको किसी फाइनेंस कंपनी से मिलने की जरूरत है या बैंक से लोन लेने की जरूरत है. जस्ट टू ओपन और स्टार्ट अ सेंटर. हाँ, अगर आपका काम दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा, इसीलिए आपको बहुत ही को बनाना है, तो उस समय जो आपके इनकम टैक्स के रिटर्न होंगे उसके आधार पर आपको आगे बढ़ने में आसानी होगी. जीरो लेवल पर मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज्यादा पैसे की आवश्यकता है. सर, व्हाट आर द जॉब अपॉर्चुनिटीज आफ्टर योगा ट्रेनिंग इन इंडिया एंड आउट ऑफ इंडिया एंड हाउ? देखिए, आउट ऑफ इंडिया की जहां तक हम बात करते हैं, आउट ऑफ इंडिया के कुछ कोर्सेज हैं. आउट ऑफ इंडिया के कुछ कोर्सेज हैं, मैं आपको नाम बताता हूं. अगर आप देखेंगे तो वहां बहुत सारी योगा की यूनिवर्सिटीज होती हैं, तो अगर आप चाहें तो वहां भी जा सकते हैं, या आपके शहर में अगर आप उनसे भी कोई भी सर्टिफिकेशन करते हैं, आपको सिर्फ 3 महीने के लिए, आपको 3 साल के लिए QCI से आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है. QCI से रजिस्ट्रेशन आप अगर करा लेते हैं तो 3 साल तक आप किसी भी इंडिया के अलावा किसी देश में काम करने के लिए रिकॉग्नाइज हैं.
यदि आप बाहर जाना चाहते हैं। लेकिन जो मैंने आपको कहा, यदि आप बाहर जाकर सक्सेसफुल होना चाहते हैं, क्योंकि ये दो चीजें हैं, एक तो आप मुझसे थ्योरेटिकल बात पूछ रहे हैं कि भाई अगर मुझे बाहर जाना है तो मुझे क्या होना चाहिए, मेरे पास कौन से पेपर होना चाहिए। दूसरी इससे इंपॉर्टेंट बात है कि बाहर जाके सक्सेसफुल होने के लिए क्या चाहिए। तो जो बाहर जाने के लिए आपको चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको बाहर जाना है तो आपको सबसे पहले चाहिए होता है QCI, दिस इज क्वालिटी काउंसिल का जो सर्टिफिकेट होता है योगा टीचर को बाहर आउट ऑफ इंडिया काम करने के लिए। ये 3 साल के लिए वैलिड होता है और हर 3 साल के बाद आपको इसको रिन्यू कराना होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके लिए होता है जिसको हम कहते हैं पुलिस कंफर्मेशन सर्टिफिकेट। ये लगता है आपके वर्किंग वीजा के लिए, क्योंकि आप वर्क वीजा पर अगर नहीं जाओगे, आप स्टूडेंट वीजा पर चले जाओगे या आप टूरिस्ट वीजा पर चले जाओगे, तो एक्चुअली व्हाट यू आर डूइंग इज इलीगल। आपको जॉब मिल सकता है, आपको वहां चुप कर रहना है, कब आपको परेशानी आ जाए। तो मेरा सजेशन है आप ऐसा कोई गलत काम योगा के टीचर बनकर ना करें, अपने आप को भी बदनाम करेंगे, योगा को भी बदनाम करेंगे। तो उससे अच्छा है आप ये 2 चीजें जरूर जाएं। पुलिस कंफर्मेशन सर्टिफिकेट फॉर वर्किंग वीजा, ये अप्लाई होता है पासपोर्ट ऑफिस के थ्रू, और अच्छी बात ये है कि आप इसको ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। संप्रति जी ने लिखा है आयुष मिनिस्ट्रीज हैड डिसकंटिन्यूड QCI, QCI इज नाउ YCB। ओके, सो QCI का नया नाम वो बता रहे हैं अब YCB है, जिसके लिए आई एम श्योर आप संप्रति जी से संपर्क करेंगे तो आई एम श्योर इस तरह की डिटेल वो आपको मुझसे ज्यादा दे पाएंगे। मैं आपको हेल्प कर सकता हूं कैसे बिजनेस सेटअप हो सकता है, कैसे आपकी ट्रेनिंग ज्यादा अच्छी हो सकती है। अगर आप किसी भी संस्थान के नाम या फॉर्म पूछना चाहते हैं तो आई एम श्योर संप्रति जी बहुत ज़्यादा इसमें नॉलेजेबल हैं, बहुत हजारों बच्चों को उन्होंने हेल्प की है और बहुत लोगों के उन्होंने करियर बनाए हैं। मेरा काम मोटिवेशन का है, बहुत ज़्यादा योगा से मेरा कनेक्शन नहीं है, आई एम नॉट अ योगी, बट सिंस आई एम डूइंग दिस आई थिंक now I am also interested and I'll also find out more things about yoga, and having friends like Samprati ji also it will help। लेकिन मेरा जो मेन उद्देश्य यहाँ पर आपसे बात करने का है वो आपको योगा सिखाने का नहीं है। योगा तो मैं आपसे सीखना चाहता हूँ, आप में से जो भी मुझे कुछ भी योगा की टिप्स दे पाए दैट वुड बी ग्रेट। मैं तो आया हूँ यहाँ पर आपको मोटिवेशन देने योगा बिजनेस के लिए, कि योगा बिजनेस के लिए इससे अच्छा समय नहीं है, इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है। प्लीज आप किसी भी अपॉर्चुनिटी का इंतजार ना करें, अपॉर्चुनिटी कभी दरवाजा खटखटा के नहीं आती हैं। कोई इससे अच्छा टाइम आगे भविष्य में नहीं आएगा कि आप स्टार्ट कर पाएं। आप जिस भी शहर में हैं वो शहर योगा की ट्रेनिंग शुरू करने के लिए, योगा सिखाने के लिए, योगा करवाने के लिए सबसे अच्छा शहर है। जो पर्सनालिटी आपकी है टू स्टार्ट विद वो सबसे अच्छी है, जो आपके पास नॉलेज है वो सबसे अच्छा है। कमी है डिसीजन मेकिंग की। जिस दिन आपने डिसीजन मेकिंग ले ली, जिस दिन आपने तय कर लिया कि अब तो मुझे करना है, जो परेशानी आएंगी वो परेशानियां मैं समझूंगा। अगर आपको कुछ पेपर से रिलेटेड परेशानियां हैं, आई एम श्योर आपको संप्रति जी हेल्प करेंगे। अगर आपको बिजनेस सेटअप करने से रिलेटेड कोई परेशानी है, अपने व्यक्तित्व से लेकर कोई परेशानी है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में से लेकर कोई परेशानी है, मार्केटिंग टेक्निक से लेकर कोई परेशानी है, तो आप डेफिनेटली मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। संप्रति जी और उनकी टीम के पास मेरे कॉन्टेक्ट नंबर्स, मेरे मेल ID सारी चीजें हैं। आप जब चाहें तब आप मुझसे इस चीज के लिए कंसल्ट कर सकते हैं। मैं बहुत खुश होऊंगा यदि कुछ साल बाद मुझे ये पता चले कि मेरे मोटिवेशन के कारण आप में से सिर्फ एक व्यक्ति ने भी ये स्टेप लिया और आपने एंटरप्रेन्योरशिप में गए और आप सक्सेसफुल हो गए, तो मेरा सारा का सारा जो उद्देश्य है आपके सामने आने का, आपके सामने बात करने का, वो पूरा हो जाएगा। मैं बहुत ही खुश हूं आज कि मैं आपसे इस विषय पर बात कर रहा हूं, क्योंकि बहुत ही हॉट टॉपिक है ये। और जहां पर बाकी सारी जगह पर ग्लूमीनेस है, जहां पर उदासी है, लोग बात कर रहे हैं किसके बिजनेस में क्या घाटा हो रहा है, कैसे हम परेशान हो रहे हैं, कैसे हम लोगों को सैलरीज देंगे, गवर्नमेंट ने कहा है सैलरी देना है लेकिन इनकमिंग तो है नहीं, दुकान पता नहीं कब खुलेगी, मजदूर पता नहीं कब आएंगे। ऐसे में हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव, हम कह रहे हैं कि ये अपॉर्चुनिटी है, हम कह रहे हैं कि एक बिजनेस ऐसा भी है जहां पर सारे बिजनेसेस नेगेटिव जाएंगे, ये पॉजिटिव जाएगा। जहां पर बाकी सारे लोग फ्री हो चुके हैं वहां पर वो अब हम उनको बेटर चीजों में, पॉजिटिव चीजों में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो लोग
जो घरों में बंद हैं, अपने बिजनेसेस में नहीं जा पा रहे हैं, उनकी आदत नहीं थी घर पर रहने के कारण, इसीलिए परिवार में आपस में झगड़े बढ़ गए हैं, इसीलिए लोग अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, लोगों को मानसिक रोग हो रहे हैं, लोगों की फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है, किसी के घुटनों में दर्द बढ़ गया है, किसी का सर्वाइकल का इशू बढ़ गया है। तो क्या हम ऐसे सारे लोगों की मदद भी करें और साथ में अपना रेवेन्यू भी जनरेट करें, और सिर्फ रेवेन्यू जनरेट ना करें, एक लॉन्ग टर्म करियर ऑप्शन हम अपने आप के लिए बना लें? इससे अच्छी कौन सी बात हो सकती है? किसी भी निगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने का इससे अच्छा उदाहरण हमें नहीं मिल सकता। आप लोगों ने मेरी बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना, बहुत अच्छे से आप लोगों ने क्वेश्चंस भी पूछे। कोई भी आपको भविष्य में प्रॉब्लम आएगी, आई एम अवेलेबल टू यू। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गुड डे।